Hi guys, this is Himacha Anavilla and today I'm going to talk about how to choose a proper MBA college. I have searched a lot of colleges actually. YouTube में भी देखा था कि how are the colleges, what college to opt. Every student have this fear कि am I choosing the right college for myself और ऐसे ही होता है कि YouTube में I have searched about the colleges but we don't get the proper information and Google भी ऐसा proper information नहीं देता है and we don't actually get the exact information how the colleges are right now and many information is left out. Right now I'm making this video with the information I have gathered. I'm not saying this is 100% correct or 100% accurate and please I suggest कि आप एक बार fact check कीजिए and before anything like selecting the colleges please आप एक बार आपके तरफ से भी कोशिश कीजिए कि whether the facts are right and then please proceed. So now there let's say मैं 4 बातें बोलूँगी आज how the process is going on. TS I said if you have written it 2024 में you are eligible to apply MBA right now and counseling dates कभी भी open हो सकती है, like you can just register any day, the link opens up. So now the process is TS I said process ऐसा है कि the day we get the link, I mean opening of the counseling, तब we have to register ourselves and then after the registration we get a specific date जिस दिन हम हमारे सर्टिफिकेट्स को वेरीफाई करवाना है. They give the specific place, address and the date and time. उस दिन हम they give a list of documents. I'll tell the list of documents as well. उस documents को हम लेके जाना है वहाँ पे to get it verified. And the list of documents are, please ये बात ध्यान से सुनिए, it's very important. आपका 10th का सर्टिफिकेट प्लस बोनाफाइड, इंटर का सर्टिफिकेट प्लस बोनाफाइड एंड डिग्री का सर्टिफिकेट एंड हमारे डिग्री में एवरी सेमेस्टर सर्टिफिकेट के बाद वी गेट अवर मेमोरेंडम सर्टिफिकेट, वो बहुत इम्पोर्टेंट है एंड देन टीसी डिग्री का एंड देन वी नीड बोनाफाइड एज वेल एंड देन आधार कार्ड चाहिए एंड देन वी नीड एडमिट कार्ड and then rank card of TSI set exam that we have written the exam and इतना marks हम score किया है वो भी हमें चाहिए and then we need income certificate for reservation category and then जो भी नॉन लोकल होता है उनको कुछ रेजिडेंट सर्टिफिकेट कह के एक सर्टिफिकेट होता है, इवन आई एम नॉट श्योर व्हाट इट इज़, उस सर्टिफिकेट को लेके जाना है टू गेट इट वेरीफाइड. सो दीज आर द लिस्ट ऑफ सर्टिफिकेट्स यू नीड टू गेट वेरीफाइड एंड वी हैव उसके बाद हम एक्चुअली स्लॉट बुक करते हैं, उसके बाद हमारा वेरिफिकेशन होता है एंड देन वी नीड उसके बाद वी हैव स्मॉल प्रोसेस कि आफ्टर वेरिफिकेशन हमारा स्लॉट्स ओपन हो जाता है, लाइक यू पुट द कॉलेज लिस्ट, उस लिस्ट के बाद वी गेट टू नो वेदर वी हैव दैट फाइनलाइज्ड, हमें सीट मिला या नहीं. उसके बाद अगर सीट कंफर्म हो गई वी नीड टू पे द पेमेंट एंड देन स्लॉट कंफर्म का बुक हो जाता है दैट दिस इज़ योर सीट बोल के. देन उसके बाद The second point I want to tell you today is हम ऐसे नहीं है कि everyone are really intellectual people. मेरी तरह भी लोग होते हैं जो इतना सा पढ़ाना आता है, so for them as well. हम let's divide the rank into 3 categories. एक below 1000 rank, second below 10,000 and above 10,000 rank. Okay, these 3 categories, what are the colleges available for them? I'm not sure 100% available here, but still these are the scope of colleges we are keeping in mind. Below 10,000 आप ऐसे मान के चलो कोई भी सेक्टर है, आप मतलब जनरल कैटेगरी BC हो या SC ST, बिलो 1,000 आपको शायद आ सकते हैं इन गवर्नमेंट कॉलेजेस. अगर आप जनरल है तो मान के चलो आपको बिलो 500 होना चाहिए बिकॉज एवरी गवर्नमेंट कॉलेज डजंट हैव स्पेसिफिक 1000 का रूल. रैंक बिलो 1000 आप BC एंड SC ST के
मान के चलो आपको बिलो 500 होना चाहिए जनरल कैटेगरी टू गेट इनटू गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज. Let's say below 1000 rank you, what are the scope of colleges we are having right now? We have OU, Osmania University. If you are from Hyderabad, you would know. And Telangana, it's very famous. And then JNTU Hyderabad, and Telangana University, and Mahatma Gandhi University, Nizam College, Koti Women's College, Kakatiya University, and CBIT, and VJIT. And these are the colleges we have right now. Below 10,000 we have Holy Mary, Nallamala Reddy, Pendakanti, St. Joseph, St. Anne's College for Women, Guru Nanak, Kasturba Gandhi, Vishwa Vishwani. These are the colleges we have for below 10,000. And yeah, I have forgot to say you guys, Bhavans be here. My friend is opting for Bhavan, so I heard it's really good. And then we have about 10,000 CMR, Aurora, Bhatruka, Avanti. These are the scope of colleges we have in mind right now. So, how do we choose the college for ourselves? That's the main point, and that's the majority of the problem for many students out there कि have to choose. मेरा भी यही हाल है, have to choose. ऐसे कैसे करना है? तो I've struggled a lot. So I really hope कि मेरा जो tips है वो आपको help हो जाए. At least one student might help. It will be a lot for me. So, how to choose the colleges and कैसे पता चलता है कि ये कॉलेज हमारे लिए है या भी नहीं. So, हमें MBA के लिए मेजरली वी हैव 3 streams. लेट ऑप्ट 4 streams. हमें फाइनेंस में है, मार्केटिंग में है, HR में है, आजकल हमें बिजनेस एनालिटिक्स में भी है. सो ये 4 ऑप्ट्स में इफ़ यू ऑलरेडी फाइनलाइज्ड कि मेरा यही मेजर है इन MBA, उसके लिए अब फोकस करना चाहिए कि इस कॉलेज में वो कैसा है. एंड इफ़ यू आर नॉट श्योर ये मुझे अभी तक मेजर सेलेक्ट नहीं हुए, डोंट वरी यार, वी हैव लॉट ऑफ टाइम. 1 year है, 1 year में वी कैन सेलेक्ट क्या है, कैसा है. एवरीथिंग विल बी डेल्ट विथ. इतना टेंशन मत ले कोई भी. सो फर्स्ट हम कंसंट्रेशन करना है. अगर आपको ऑलरेडी आपका लेट्स से कि आपको पता है तो उसमें कंसंट्रेट कीजिए, नहीं पता तो रिलैक्स हो जाइए. सेकंड पॉइंट, हम ये बात में कंसंट्रेट करना चाहिए कि एनवायरनमेंट ऑफ द कॉलेज कैसा है. इट प्लेस ए वेरी मेजर रोल गाइस, क्योंकि लेट्स से कॉलेज का एनवायरनमेंट इतना अच्छा नहीं है, आप एडजस्ट नहीं हो पाते वहाँ जाके. लाइक रोज़ रोज़ स्ट्रगल होना, रोज़ रोज़ ऐसे फील करना यार क्यों लिया है ये कॉलेज मैंने. इसी माइंडसेट में हम 2 साल बहुत लाइक ट्रबल हो जाते हैं. वी डोंट वांट दैट फॉर 2 years राइट. सो हम एनवायरनमेंट को भी ध्यान रखना चाहिए कि हाउ इज़ द कॉलेज, उसका एनवायरनमेंट कैसा है. Will I be able to adjust in that environment is the major thing. And second, हमें ये देखना चाहिए कि वहाँ पे प्लेसमेंट्स है या भी नहीं. इफ़ है, कैसे है, कौन कौन आते हैं, हाउ आर दे गोइंग टू टेक द प्लेसमेंट्स, किसके साथ कॉन्टैक्ट है, ये हमें वेबसाइट में मिल जाता है गाइज. वो प्लेसमेंट्स में क्लिक करें तो आपको किस किस के साथ उनका टाई अप है पता चल जाता है. बट द थिंग यू हैव टू पे मोर अटेंशन इज, किसी का वेबसाइट में भी हमें पता चलता है कि वहाँ पे प्लेसमेंट है. एवरी कॉलेज सेज कि वो वहाँ पे प्लेसमेंट चलता है, बट कितना सही है कितना नहीं है वो हमें ही पता करना चाहिए. कि कॉन्टैक्ट योर फ्रेंड्स, कॉन्टैक्ट एनीवन यू नो हु आर एक्चुअली स्टडिंग देयर और स्टडीड देयर, और हु नोज समवन हु वाज स्टडिंग देयर और हु इज स्टडिंग देयर. कॉन्टैक्ट करो, फ्रेंड्स को कॉन्टैक्ट करो कि कैसा है वहाँ पर, कैसा है. एंड देन अब सोचो अगर वहाँ पे है, अच्छा है, एक्चुअली वहाँ पे चल रहा है प्लेसमेंट्स अच्छे से, एक बॉक्स चेक हो गया कि ठीक है, एटलीस्ट हमें 1.5 year के बाद हमारा फ्यूचर के बारे में एक प्रॉपर बात पता है कि यहाँ पर हम जॉब करेंगे, कैसा करेंगे, क्या करेंगे, वो पता चल जाता है. एंड नहीं, वहाँ पर प्लेसमेंट्स नहीं है तो इट्स अ मेजर बिग डील. क्योंकि हमें एट प्रेजेंट हमारे मार्केट ऐसा है कि
बाहर जाके प्लेसमेंट्स के लिए जाना और जॉब सर्च, जॉब हंट, वो बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है गाइस. इट्स लाइक इट्स रियली hard to get job out rather than getting in a placements, if you understand me. So please check if the colleges are really conducting the placements. It's very important. And next comes हम फैकल्टी पे को भी चेक करना है कैसे फैकल्टी है. एटलीस्ट हमें डोंट एक्सपेक्ट कि वो हमें स्पून फिट करेंगे. इट्स लाइक दे जस्ट गिव यू द स्ट्रक्चर. हम खुद सेल्फ स्टडी करना है, बट एटलीस्ट प्रोफेसर्स होना चाहिए ऐसे कि हमें गाइड कर सके. प्लीज़ चेक आउट द प्रोफेसर्स कौन कैसे पढ़ाता है, सो हमें थोड़ा गाइडेंस मिल सके फ्यूचर में. बिकॉज हमें एटलीस्ट कहीं ना कहीं हमें गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हम पीजी एमबीए कर रहे हैं गाइस, तो वहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे गाइडेंस. क्योंकि सम माइट, कैसे बोलूँ, इफ़ आई हैव सम स्किल बट आई डोंट नो दैट, उनकी गाइडेंस के हिसाब से ही हमें पता चलता है कि यहाँ मुझ में ये टैलेंट है, मैं उसको यूज़ कर सकती हूँ. वो गाइडेंस बहुत ज़रूरी है गाइस. एंड देन चेक आउट मिनिमम बेसिक फैसिलिटीज़ है या भी नहीं वहाँ पे. हमें कॉलेज में बेसिक एमिनिटीज़ मिलना चाहिए. हाउ इज़ द कॉलेज, वहाँ पर एमिनिटीज़ है, फैसिलिटीज़ है, कैसा फैसिलिटीज़ है, कैंटीन है या नहीं. अगर आप नॉन लोकल्स है तो हॉस्टल कैसा है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ है या नहीं इन कैंपस. अगर कैंपस में हॉस्टल नहीं है तो बाहर आप हॉस्टल अरेंज करना चाहिए. तो ये सब के बारे में आप सोचना पड़ेगा. एंड ट्रैवलिंग, कितना डिस्टेंस है घर से, एंड हाउ यू आर गोइंग टू ट्रैवल. अगर उनके पास ट्रैवलिंग का फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्टेशन, और नहीं है तो आप कैसे जाना चाहिए, वो सब कुछ माइंड में रखना पड़ेगा. एंड देन नेक्स्ट थिंग, वहाँ पर क्लब्स है या नहीं. इट रियली इज़ नॉट द बिग डील, बट हमें नर्चर करने में बहुत हेल्प करेगा गाइस. स्टूडेंट क्लब्स आर इम्पोर्टेंट क्योंकि हमें सोशलाइज होने में एंड हमें डेवलप होने में बहुत हेल्प करता है वो. लाइक लेट मी पुट इट दिस वे, हमें एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जहाँ पर वी एक्चुअली develop ourselves intellectually, as well as we get that exposure, talking to different kinds of people. मुझे बहुत स्टेज फियर है. आई नो यूट्यूब में आके बोल रही हो आपके बहुत स्टेज फियर, बट येस आई हैव स्टेज फियर. अगर कोई सामने है तो मैं बात नहीं कर पाती हूँ. लाइक ज़्यादा लोग हैं तो, एंड दैट आई डोंट नो देम, आई कांट टॉक टू देम. सो ऐसे हमें एक्सपोजर के साथ साथ मेरा स्टेज फियर भी ख़त्म हो सकता है, और कोई और किसी का और कोई फियर हो सकता है, वो भी ख़त्म हो सकता है. एंड वी गेट टू नो ईच अदर वेरी वेल. कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव होता है. एंड सीरियसली वी पॉइंट ऑफ व्यू रखने में बहुत हेल्प होता है कि फ्यूचर में इफ़ वी आर डूइंग सम जॉब, वहाँ पर हम ईजीली कम्युनिकेट कर पाते हैं. हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बिना किसी को हर्ट करे रख पाते हैं. वो बहुत हेल्प होता है. सो चेक आउट इफ़ यू हैव स्टूडेंट क्लब्स और नॉट. अगर आपको कुछ कॉलेज बहुत अच्छा लगे, सब में चेक, बट वहाँ पर क्लब्स नहीं है तो कोई बात नहीं. आप फ्रेंड्स के साथ क्लब फॉर्म कर सकते हो अनऑफिशियली. जस्ट हैंग आउट, एक्सप्रेस योर सेल्फ इन क्लास, वो बहुत काफ़ी होता है. एंड पे अटेंशन गाइस, क्लास में कभी ना कभी आप पे अटेंशन, सो दैट हमें वी गेट टू नो व्हाट एक्चुअली इज गोइंग ऑन इन क्लास. एंड हम कहाँ पर है, कितना आगे बढ़ना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हमें पता चल जाता है नॉर्मली. एंड अगर आप डिग्री जस्ट कंप्लीटेड, आप एक बार आपकी डिग्री प्रोफेसर से भी गाइडेंस ले लीजिए. वो बहुत अच्छा है क्योंकि उनको हमसे काफ़ी ज़्यादा पता है. वो ऑलरेडी इसी इंडस्ट्री में है. उनके टाइप्स होता है पीजी कॉलेजेस के साथ, एमबीए कॉलेजेस के साथ. एंड उनको ये भी होता है कि वहाँ पर कोई प्रोफेसर है, उनको पता है कैसा है कॉलेज, उनको पता चल जाता है इनसाइड इन्फॉर्मेशन. सो एक बार आपकी प्रोफेसर से कांटेक्ट कीजिए, वो बहुत अच्छे से गाइड करता है. बस आप प्यारी प्यारी बातों से मक्खन लगाइए, उनको अच्छे से हो जाता है. एंड basic sports, अगर you are interested in sports, you can check out if they have any sports area for you to go there. And canteen guys, food एक बार check कीजिएगा, because sometimes we will be in this much hurry कि हमें खाना वहाँ पर ही खाना पड़ता है. सो फूड इज़ इम्पॉर्टेंट. अगर वहाँ पर अच्छा नहीं है तो घर से लेके जाना पड़ता है. एंड इफ़ यू आर नॉन लोकल्स, पता ही तो है हॉस्टल में बहुत
carefully check करना पड़ता है, and these are the information you need to check before getting into a college. And yeah, fee structure भी check करना बहुत important है. What is your financial bracket that you are willing to pay for a college, and वहाँ पर if that उसी bracket में हमें college मिल रहा है या फिर नहीं, ये भी बहुत important है. And one thing मैं personally suggest करूँगी, आप प्लीज़ जाके कॉलेज को वेरीफाई कीजिए. आप जाके देखिए कि हाउ इज़ द कॉलेज बिफोर टेकिंग द एडमिशन, सो यू वोंट रिग्रेट इट आफ्टर टेकिंग द डिसीजन. एंड देन अब लास्ट बात यह है कि आपको एग्जाम्पल मैं ही हूँ, मैं आईसेट लिखी हूँ, तो यू कैन आई विल टेल यू हाउ आई चूज माई कॉलेजेस. कॉलेज लिस्ट है मेरे पास, एंड मेरा रैंक क्या है, मैं कैसे चूज़ किया हूँ, वो भी बता दूंगी. एंड गाइस प्लीज़ पार्डन माई हिंदी. मैं रिसेंटली आई लर्न हिंदी एंड आदत हो गई है हिंदी में बात करना, एंड आई नो देर इज़ अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन माई हिंदी. वो समझ गए ना, मतलब इफ़ यू अंडरस्टैंड इट प्लीज़ मेरी गलती को माफ़ कर दो. आई नो माई फ्रेंड्स ऑलवेज टीज मी फॉर माई हिंदी, बट स्टिल आदत हो चुकी है बात करने में, एंड गलतियों से बात करने और ज़्यादा आदत हो गई है. सो प्लीज़ एक्सक्यूज माई हिंदी. एंड या, हाउ डिड आई चूज माई कॉलेज इज़ द मेन थिंग. ठीक है, फर्स्ट व्हाट इज़ माई रैंक. मेरा रैंक है 781, बिलो 1000 ही है, बट आई एम नॉट एलिजिबल टू कपल ऑफ कॉलेजेस बिकॉज मैं जनरल कैटेगरी की हूँ, एंड मेरा ब्रैकेट्स और ज़्यादा लो हो गई है. सो आई एम नॉट एलिजिबल टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी एंड JNTU कॉलेज. बट गाइज कभी ना, हाउ यू लिस्ट योर कॉलेजेस भी इम्पॉर्टेंट है. ये पॉइंट ये है कि इफ़ यू नो दैट यू आर नॉट गोना गेट इनटू दोज कॉलेजेस बट दे आर वेरी गुड कॉलेजेस, फर्स्ट वही रख दो. यू नो यू आर नॉट गोइंग टू गेट देम, प्रॉब्लम नहीं है, बस रख दो. क्योंकि if you're not eligible now, you just go down, and after them immediately put the colleges you are eligible for and you actually want to go. उसमें ना आपको सीट मिल ही जाता है 90% ऑफ द टाइम. ऐसे हम थोड़ा प्लान कर सकते हैं. सो आई एम नॉट एलिजिबल टू OU एंड JNTU, सो मैं फर्स्ट वही रख लिया था. सो फर्स्ट JNTU एंड देन OU, एंड देन I personally preferred CBIT, VJIT and Malla Reddy. As I said, गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी है. मेरा डिग्री प्रोफेसर ये कहे कि शी गाइडेड मी टू गो टू इंजीनियरिंग कॉलेजेस बिकॉज वहाँ पर अच्छा प्लेसमेंट्स होता है. ज़रूरी नहीं है कि आप भी वहाँ पर ही जाइए. आपको ऐसे मैंने कहा था, लाइक लिस्ट आउट दम, एम्यूनिटीज, फैसिलिटीज़, ये सब कुछ माइंड में रखे हुए आप डिसीजन लेंगे. तो तब कोई भी कॉलेज हो, अगर आपके चेकलिस्ट टिक हो रही है तो वो अच्छा ही होगा. आपके लिए आपकी प्रायोरिटीज़ आपके हिसाब से कॉलेज चेक करना पड़ेगा. सो मेरे लिए तो मेरा चेकलिस्ट अलग है, आपके लिए आपका अलग है ना. तो मेरा CBIT, VJIT एंड Malla Reddy. इसके बाद आई ऑप्टेड फॉर वुमेंस कॉलेज इन कोटी एंड देन निज़ाम कॉलेज एंड देन आंध्रा महिला सभा, विच इज़ माई डिग्री कॉलेज. वहाँ पर MBA भी अवेलेबल है. तो इस लिस्ट में CBIT, VJIT, Malla Reddy, इन तीन में से नीचे नहीं जाएगा बिकॉज आई हैव द रैंक विच आई एम एलिजिबल फॉर CBIT ओनली. सो CBIT में मेरा रैंक ब्रैकेट है 1000, but I have 781, so there are like chances that I might get the seat वहाँ पे ही 90%, I'm not sure. So the reasons I chose that are like अच्छा placements है. And yes guys, as I said, if you know what is the major you are choosing, आप उनके हिसाब से ही जा सकते हैं. I have already decided what is my major. I am a chartered accountant student, intermediate level में हूँ, and as I already am interested in the finance field, मैं finance में ही MBA करना चाहती हूँ. और there is a slight chances I might even check out how business analytics is. अगर मुझे वो बहुत अच्छा लगे वो भी ले सकती हूँ, but both are related to finance majority. So मैंने first thing ये check किया है how is the college, but for MBA specifically we don't know, but the reputation precedes it. CBIT reputation is so high कि जिनसे भी मैं पूछूँ, like I have contacted every person I have known who did their engineering there,
and who have a lot of friends who did engineering. They have contacted at least 50 members guys. किन से भी पूछो, they were like CBIT अच्छा ही है, so and it's affiliated to Osmania University, so and its certificate has very good value. So इनके हिसाब से मैंने वही चूज़ करना चाह रही हूँ. प्लेसमेंट्स में जो फाइनेंस के रिलेटेड है वो भी है, लाइक कुछ कंपनीज है जो टाई अप्स है, लाइक डेलॉइट, विप्रो, आई थिंक विप्रो है शायद, JP Morgan है, एंड वी इवन हैव माइक्रोसॉफ्ट आई गेस, एंड या हेक्सागॉन है, ये सब कुछ है. ITC है. दिस आर मेनली फॉर मैनेजमेंट एंड फाइनेंस रिलेटेड है. तो मैंने सोचा यस ये थोड़ा अच्छा प्लेसमेंट है जो मुझे चाहिए. एंड देन वहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ भी अच्छी है. मैं अभी तक जाके वेरीफाई नहीं किया, बट आई एम प्लानिंग ऑन गोइंग देयर इन कपल ऑफ डेज एंड चेक आउट हाउ द कॉलेज इज़, हाउ कॉलेज एनवायरनमेंट इज़, इफ आई विल बी एबल टू एडजस्ट देयर और नॉट. सो एंड इफ यू गाइज नो CBIT के आसपास ही VJIT भी है, सो आई एम गोइंग टू चेक आउट बोथ द कॉलेजेस ऑन द सेम डे. If possible, I'll give a bit of a review on colleges I'm going to review, so आपके भी कुछ help हो जाए. I'll try my best guys. अगर possible है तो I'll give you the review. I'll take some shots of the place. If नहीं हो पाए तो I'll just give you the video कैसे कैसे था, okay? And then वहाँ पे क्लब्स है, स्टूडेंट्स क्लब बहुत सारा है. एवरी स्मॉल डिटेल वहाँ पे इतने सारे क्लब्स है कि नाउ आई एम कन्फ्यूज कौन से स्टूडेंट क्लब लूँ. एंड या ट्रांसपोर्टेशन इज़ ऑल्सो गुड. मेरे घर के बहुत नियरली द स्टैंड है बस का, लाइक जस्ट आई कैन गो बाई वॉक. द व्हाट वी से नियरली द बस इज़ गोइंग टू स्टॉप एज अ बस स्टॉप फॉर CBIT. सो वहाँ जाके मैं जाना चाहिए वहाँ पे टू गेट द बस. एंड या मॉर्निंग 7:30 को आता है गाइस, सो दैट्स द ओनली इशू बिकॉज इट्स टू फार फ्रॉम माई हाउस. इट्स अराउंड 20 to 25 किलोमीटर्स आई गेस घर से. सो वो एक ही प्रॉब्लम है, बट अनदर देन इट्स जस्ट द ट्रैवल. वो अब कोई भी यूनिवर्सिटी ले लो वो हो ही जाता है 1.5 hour फॉर द ट्रैवल. एंड और professors have checked out, majority of them have doctorate and PhD and very highly awarded people. And I even checked the syllabus of what is the semester wise syllabus of CBIT guys. They have a really good structure of syllabus as well. I mean I just checked out JNTU and CBIT syllabus, so दोनों मुझे बहुत अच्छे लगे हैं. And am I missing anything? ट्रांसपोर्टेशन, आई एम ए लोकल, सो मैं घर से ही जाऊँगी. नॉट an issue about the hostel, एंड खाना तो घर से लेके जाऊँगी, वो भी इशू नहीं है मेरे लिए. एंड एनवायरनमेंट वहाँ पर जाके पता चल जाएगा. स्टूडेंट क्लब्स है. आई एम होपिंग दैट आई माइट गेट आउट ऑफ माई स्टेज फियर, एंड मेरा जो भी चाहिए वो है वहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट्स. बट आई एम नॉट श्योर वो 100% होता है, बट एटलीस्ट जो है वो है. एंड फीस स्ट्रक्चर भी मेरा ब्रैकेट में आ रहा है गाइस. वहाँ पर 90,000 है फीस. आई एम नॉट श्योर कितना आगे जाएगा, बट एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऑब्वियसली वो लेंगे, बट आई एम नॉट श्योर व्हाट आर द ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस. आई एम पुटिंग इन माइंड कि 1,50,000 होगा पर एनम. इन दैट लेट्स से अप्रॉक्सीमेटली 2,50,000 to 3 lakhs होगा गाइस इन CBIT. एंड दिस द रीज़न मैं इतना CBIT के बारे में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आई नो आई एम नॉट गोइंग टू गेट इन टू OU and JNTU. 90% ऑफ द चांसेस देर आर कि मुझे CBIT में ही आएगा. तो आई हैव कॉन्सेंट्रेटेड अलॉट ऑन CBIT. एंड जो भी पॉइंट्स मैंने CBIT के बारे में बोला है वो VJIT में भी है गाइस. दे आर वेरी नियर बाय. एक्स्ट्रा 5 kilometers डिस्टेंस है VJIT, बट द सेम थिंग फॉर बोथ ऑफ देम. सो इसलिए मैंने फर्स्ट CBIT रखा क्योंकि वो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस है. एंड बस वैसे ही इट हैज़ रियली गुड रेपुटेशन अकॉर्डिंग टू माई कॉन्टैक्ट्स. सो मैंने फर्स्ट CBIT रखा है एंड देन VJIT रखा है. एंड मल्लारेड्डी इज़ ऑल्सो गुड गाइस. इट्स नॉट बैड और वेरी वेरी गुड. इट कम्स अंडर अ pretty good category.
इट्स मैनेजेबल कॉलेज, अगर आपके वो उतना ज़्यादा अच्छा रैंक नहीं है और बुरा भी नहीं है, बट यू नो समटाइम्स वी डोंट गेट इन टू द कॉलेज वी वांट. अगर मुझे टचवुड ऐसा नहीं हो बट CBIT VJIT नहीं आया तो मेरा ऑप्शन मल्लारेड्डी है, बिकॉज इट्स काफ़ी गुड है गाइस, इट्स गुड. इट्स ऑल्सो affiliated to Osmania University. So these are like pros and cons चेक करना पड़ता है गाइस. मेरा प्रोज ये है, कॉन्स ये है कि मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा बिटवीन चार्टर्ड अकाउंटेंसी इंटरमीडिएट लेवल एंड द सेम टाइम MBA. मुझे वो बहुत काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाली है. एंड एट द सेम टाइम आई नीड टू मैनेज ऑल द प्रोजेक्ट्स और द सिलेबस एंड द स्टडी दे आर गोइंग टू गिव along with the studies of CA. एंड काफ़ी डिस्टेंस होगा तो बहुत टायर्ड हो जाएंगे. डिस्टेंस वही है. एंड अब तक तो यही कॉन्स दिख रहा है मुझे, मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन मी कैसे है. एंड मुझे ना बहुत वो है कि वहाँ पर हाइजीन कैसे होगा, मुझे थोड़ा डर है अबाउट द हाइजीन. बट अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज़ गुड अकॉर्डिंग टू मी. जो भी कॉलेज है अगर हम गारंटी के साथ 100% चेक बोल के नहीं बता सकते. सो जितने मुझे पता चला है कि ये बेस्ट है मेरे लिए. सो आई होप कि ये एटलीस्ट थोड़ा हेल्पफुल है आपके लिए. सो यू नो फर्दर आप डिसाइड कर पाए क्या कैसे लेना है, कौन सी कॉलेज में लेना है. एंड वैसे यू माइट यू नो डिसाइड कि आपका क्या रूट होने वाला है. आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट गाइज. एंड नाउ लेट्स होप वो जल्दी काउंसलिंग शुरू करते हैं एंड यू नो विच कॉलेज आर वी गोइंग फॉर, बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड एंड नर्वस एट द सेम टाइम. एंड लेट्स सी, अगर मैं गई तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगी मेरे रिव्यूज. अगर नहीं हो पाया तो भी चलेगा आई गेस. लेट्स होप क्या होगा. एंड आई अप टू यू गाइज. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.